Hello guys, welcome to eTutions, Odisha's largest digital platform for providing education for better tomorrow. So where quality education is being provided by the expertise. So कैसे हो आप सभी? होप सब अच्छे होंगे, मन लगाकर घर में पढ़ते होंगे. जैसे कि eTution dedicated towards quality education. So you can install our application on Play Store also, and you can see the quality videos in YouTube बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन. राइट, याद है ना? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लोकेट रूट टू ऑन नंबर लाइन. तो इसका एक कोई एक इरेशनल नंबर को जब भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, whenever we are representing an irrational number in a number line, what we have to remember that we have to check that irrational number is in between in which two perfect square number. What do you mean by perfect square? Perfect square are those numbers the root over of which number we can determine, right? So what do you mean by perfect square? Perfect square are those number of which we can determine the root over. Like I can say root over 1. Root over 1 is 1. Root over 4. Root over 4 is 2. So beta, root 2 and root 3 lies between root over of 1 and root over of 4. See, root 1, root 2, root 3, then root 4. 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है 1 उसका रूट ओवर 1 होता है. ठीक है, अच्छा ये प्लस माइनस 1 होता है लेकिन हमें वहां से कोई मतलब नहीं है अभी. दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंसिस्टिंग ऑन प्लस माइनस 1. आई एम जस्ट गिविंग यू द कंसेप्ट of irrational number. So see what happens. So 1 is a perfect square, so root over 1 is 1. Root 2 is a perfect square, 4 is a perfect square, so 2 ka square 4, so root over 4 is 2, right? So root over 2 is not a perfect square, so root over 2 is cannot be determined, so we write that as root 2. So what I am trying to say, whenever you are locating an irrational number in a number line, you have to see the previous perfect square number. ठीक है, तो जब भी कोई इरेशनल नंबर को तुम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा, तो वहां पे तुम्हें क्या देखना है कि वो नंबर के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रूट 5 बोलता, रूट 5 के लिए मुझे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4 को कंसिडर करना होता. तो वहां से उसका जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको कंसिडर करके वहां से तुम 1 यूनिट लेके फिर ड्रॉ कर सकते हो. अगर 1 यूनिट से नहीं होता है उसको तुम ज्वाइन कर लो डायगोनल को, फिर 1 यूनिट ले लो. तो रिपीटेटिवली अगर साइक्लिक प्रोसेस में जाओगे तुम, यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू that number on the number line, that irrational number on the number line you can determine. So what I am trying to say, let us focus. So in the last class I have already told that how to draw root 2 on a number line. So I am just repeating as a revision pattern. मैं और एक बार रिवीजन के लिए बता रहा हूं, तो गौर से देख लो. what you have to draw, you have to draw first the number line. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तुमको नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा 0, 1, then 2, then 3. Likewise in the left hand side -1, -2, -3. Likewise you can continue. Okay, so root 2, the nearest previous perfect square is 1. The nearest previous perfect square is 1, so we'll take 1 unit at the base. तो रूट 2 का नियरेस्ट प्रीवियस जो भी है, प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 1 है. तो यहाँ पे हमने बेस में 1 यूनिट लेना है. तो 0 से 1 मैंने यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया बेटा. चलो कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें गौर से दिखाई दे. तो 0 से 1 यूनिट हमने बेस में ले लिया. वी टेक 1 यूनिट एज बेस. सो ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, draw perpendicular here. So I have drawn here, so this is 90 degree, and join this point and this point. You can name this point A, this point B, this point C, and join this point. So why is it coming root 2? I have already discussed in the last class. So the distance of OB is 1 unit. The distance of BC is also 1 unit. So it's a right angle triangle. So according to Pythagoras theorem, you can determine the value of OC. Which formula? Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square,
and here is the value of P is 1 unit, the value of B is also 1 unit. So just put the value 1 square 1, 1 square 1, 1 plus 1 is equal to 2. That implies S square is equal to 2, and the value of H will be how much beta? The value of H will be root 2, means this value will be root 2. This value will be root 2, right. And if I ask how to draw root 3 from here, if I'll ask how to draw root 3, see there are two methods you can draw root 3. Like I am telling you the two things. So here is the root 2, you just take perpendicular 1 unit here, you just take perpendicular 1 unit here. So join this, let this point is D, and join O and D, join O and D. So this OD, see this OD will be root 3, this OD will be root 3. Why? Because OCD will be a right angle triangle na beta, OCD will be a right angle triangle. So you will apply Pythagoras theorem in it. So if you will apply Pythagoras theorem in it, so OC square plus CD square will definitely will be equal to OD square. So if you will calculate square of root 2 square plus 1 square, that will be 2 square plus 1 square is 2 square, sorry, root 2 ka square is 2, 1 ka square is 1. So 2 plus 1 is equal to 3 is equal to what beta? OD square, right? OD का square के साथ वो equal होगा. So what will be the value of OD? OD will be root 3 beta, OD will be root 3. Then again you can put your compass here. Compass का जो needle portion है O पे रखोगे, pencil वाला portion D पे रखोगे, and you will just draw an arc here. We'll just draw an arc here. So let the point is E. So if I am measuring the length from O to E, this point is O, okay, this point is O, where the 0 is been given, that point is O. So if I'll measure from O to E, that value will be root 3, that value will be root 3. So this is one method to draw root 3. So what is the other method to draw root 3? I will say in the next slide. So likewise you have to draw root 2 first. In each case you have to draw root 2 first. Why? Because root 2 square plus 1 square is equal to root 3 का square, है ना? बट यहाँ पे ये भी गौर करना है कि रूट 3 का प्रीवियस वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 1 है. तो 1 को बेस मानकर हमें चलना है. लेकिन 1 को बेस मानकर हम जब चलते हैं 1 और परपेंडिकुलर 1 लेते हैं तो वहां पे रूट 2 आ रहा था. तो वहां से फिर सक्सेसिवली हम 1 यूनिट बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा इरेशनल नंबर नहीं आ जाता. समझ रहे हो? वहां पे 1 और 1 लेके हमें रूट 2 मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? रूट 3 चाहिए. तो रूट 3 के लिए हम पहले रूट 2 ड्रॉ कर लेते हैं. वहां पर फिर से 1 यूनिट अगर हम ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर से लेके और उसको ज्वाइन कर लेंगे तो अपने आप हमें रूट 3 मिल जाएगा, है ना? यही बात मैं पहले बता रहा था कि सक्सेसिवली पहले तुम प्रीवियस वाला परफेक्ट स्क्वायर लोगे, वहां से फिर तुम्हें परपेंडिकुलर जो है 1 यूनिट लेके उसको ज्वाइंट करना है. फिर अगर तुम्हारा डायगोनल नहीं आ रहा है, हाइपोटेनियस नहीं आ रहा है, तुम्हारा हाइपोटेनियस का वैल्यू उस इरेशनल नंबर में नहीं आ रहा है, फिर से वहां से तुमको परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है, फिर से ज्वाइन करना है. अगर वहां पर भी नहीं आ रहा है, फिर से 1 यूनिट तुमको आगे जाना है. ऐसे ज्वाइन करते करते तुमको जब आ जाएगा तब तक चलते जाना है. जब आ जाएगा वहीं पे रुक जाना, अगर आ गया तो रुक जाना, अगर नहीं आया फिर से 1 यूनिट परपेंडिकुलर एंड जॉइन इट विद द O point. Then you can continue like this. So I have already told one method for drawing root 2, and another method I will tell here. So see here, first you have to draw the number line, right? Always draw the number line first. So this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is -1, this is -2, this is -3. तो पहले क्या करना है? ये तो रूट 3 का नियरेस्ट प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर इज 1. So बेस में हमको 1 यूनिट लेना है. So बेस में I will take 1 unit. In the base I will take 1 unit. Then I will draw a perpendicular here. So this length is 1 unit. This is perpendicular. You will just name it. This is O, this is A, and this is B. And join O with B. Joined O with B. So the value of this is 1 unit na beta. Perpendicular is 1 unit. The base is also 1 unit. So automatically the value of hypotenuse, the value of OB will be root 2.
the value of OB will be root 2. What we'll do now? So see with focus what I am doing now. So I will just put my compass needle on the O and with the pencil at B, और मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा बेटा, आर्क ड्रॉ कर लूंगा, और let that point where it intersect the number line, that point is D. So OD का जो डिस्टेंस है बेटा, OD का जो डिस्टेंस है that is root 2. The distance between OD is root 2, है ना. मैंने वही OB को बस वहां पे कंपास में रख के नीचे तक ला लिया, और वहां से जब मैं इंटरसेक्ट किया, जो नंबर लाइन पे जहां पे इंटरसेक्ट किया, दैट पॉइंट आई हैव गिवन D, एंड वी नो दैट द लेंथ ऑफ OD विल बी रूट 2, राइट. सो यहां पे D पॉइंट में ना बेटा, यहां पे D पॉइंट में मैं अगर यहां पे एक 1 यूनिट ड्रॉ कर लूंगा परपेंडिकुलर, अगर D पॉइंट में मैं एक 1 यूनिट ड्रॉ कर लेता हूं परपेंडिकुलर, लेट दैट पॉइंट बी E. अभी मैं अगर O और E को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, सो ODE ट्रायंगल, सी केयरफुली, there the triangle will be like this, ODE, where OD is root 2 unit, where OD is root 2 unit, DE is 1 unit. So OE will be how much beta? You will apply Pythagoras theorem. OE square will apply Pythagoras theorem. OE square is equal to OD square plus DE square. So OD square is equal to root 2 square of root 2 whole square, plus D is 1 whole square. This will be 2 plus 1 equal to 3. That implies OE will be how much beta? Root over of 3 ना बेटा. OE will be root over of 3. समझ में आया नहीं आया बेटा? मैंने वही चीज को बस क्या कर दिया, यहां पे मैंने क्या किया था, रूट 2 से ऊपर सक्सेसिव मेथड में मैं वहां पर रूट 2 से सी पॉइंट से 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और वहां से कनेक्ट कर लिया था, फिर से वो वाला, फिर वहां पे मैं कंपास को रख के नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, और यहां पे मैंने क्या कर लिया, पहले रूट 2 को नंबर लाइन में दिखा दिया, और रूट 2 से फिर 1 यूनिट मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, और वही जब मुझे मिल गया रूट 3, यहां पर फिर से तुमको O पर कंपास रखना है, और कंपास का नीडल, यू विल पुट द नीडल पोर्शन ऑफ द कंपास एट O, एंड यू विल पुट द pencil part of the compass at E, and you will draw an arc, and wherever it is intersecting the number line, that point, let that point is F. So the distance between O and F will be root 3. The distance between O and F will be root 3. होप ये वाला चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट एक नया इरेशनल नंबर जिसको तुम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे वो सीखते हैं. एक नया नंबर हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा ये वाला बात याद रखना कि कोई भी इरेशनल नंबर को जब तुम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑलवेज टेक केयर, यू शुड टेक द बेस एज द प्रीवियस perfect square. You should take the initial base as the previous perfect square. जैसे कि यहां पर रूट 27 नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना है, यहां पे रूट 27 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले ये मुझे बताओ रूट 27 का प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. व्हाट इज दैट नंबर व्हिच इज द प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट टू रूट 27? दैट इज रूट ओवर ऑफ 25. रूट ओवर ऑफ 25 इज व्हाट? 5. Root over of 25 is what? 5. So we'll take the initial base in the number line as the 5 unit. समझ में आया बेटा? We should take the initial base in as 5 unit in the number line. So observe carefully मैं क्या कर रहा हूं. तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने नंबर लाइन को यहां पे मैं खींच रहा हूं, ये लो, ये हो गया अपना नंबर लाइन. तो यहां पर मैं यहां पे 0 1 2 3 4 5 यहां तक ऐसे कर सकता हूं. वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कर सकता हूं. ठीक है, ये वाला कर सकता हूं. तो यहां पे रूट 27 गिवन है ना, तो नियरेस्ट प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर इज रूट 25, व्हिच इज रूट ओवर ऑफ 25 इज 5. विल टेक 5 एज द इनिशियल बेस. तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से O को 0 को मैं O पॉइंट दे रहा हूं. ठीक है, तो 0 को आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज O, एंड दिस पॉइंट एज A. सो OA, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA बेटा? OA इज इक्वल टू 5 यूनिट.
the length of OA is 5 unit, right? सो OA का जो मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो हमको 5 यूनिट मिलेगा। तो यहां से A पॉइंट से आई विल ड्रॉ ऑन परपेंडिकुलर इन फ्रॉम द पॉइंट A आई विल ड्रॉ ऑन परपेंडिकुलर of length 1 unit and I will give that point as B. This is the point A, right? So the distance of AB is how much beta? The distance of AB is 1 unit. I'll just join O and B. I'll just join O and B. This is a right angle triangle. I'll just join O and B. So OAB will be a right angle triangle. If we'll apply Pythagoras theorem in that, so OA square plus AB square is equal to OB square, right beta? So अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, OA square plus AB square is equal to OB square, right? Is equal to OB square. So what is the value of OA? The value of OA is 5 unit, 5 ka square, plus what is the value of AB? AB is 1 unit, 1 ka square. So this will be 25 plus 1. So this will be OB square. That implies OB square will be root over of 26. OB will be root over of 26. So this value is root over of 26, right? This value is root over of 26. लेकिन हमें क्या चाहिए? root over of 27. हमें चाहिए रूट ओवर ऑफ 27। तो तुमको क्या करना है? सक्सेसिव लगाओ। सक्सेसिव 1 यूनिट तुमको परपेंडिकुलर फिर से लेना है। सक्सेसिवली यू हैव टू टेक 1 यूनिट एज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी अगेन। जब तक नहीं आएगा till that time when it is not coming your desired irrational number you have to take। जब तक नहीं आता है तुमको सक्सेसिवली 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेके जॉइंट करना है O के साथ। फिर वो जो हाइपोटेनियस है उसका यूनिट अगर तुमको इरेशनल नंबर आ गया तो वहीं पे रुक जाना है। अगर नहीं आया है तो फिर से सक्सेसिवली जाना है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो I'll take 1 unit perpendicular here. I'll take 1 unit perpendicular from the B. I'll take 1 unit perpendicular from the B and I'll name that point as let's suppose C। and मैं अगर join करता हूं, if I will join OC, so OBC will be a right angle triangle beta। OBC will be a right angle triangle where will apply where OB is root over of 26, BC is 1 unit, OB is the base root over of 26 unit, BC is the perpendicular 1 unit। So if I will apply Pythagoras theorem, so it will come as OB square plus BC square is equal to OC square, right? So OB is how much beta? OB is root 26. That implies root 26 square, root 26 whole square plus BC. BC is 1 unit, 1 whole square will be OC square, right? So root 26 whole square means 26. 1 whole square means 1. So 26 plus 1 will be 27. So OC will be how much beta? OC कितना हो जाएगा? OC will be root over of 27, right? तो यहां पे तुम्हें मिल गया OC will be root over of 27। so you will just need your compass, put the needle portion at O, put the pencil portion at C and draw the arc wherever it is intersecting the number line from the point। let that point be denoted as D। so from the point O and point D the total distance will be root 27। the distance between the point O and the point D will be root 27 unit and you have successfully shown root 27 on number line। होप ये बात क्लियर होगा। अभी ये बात क्लियर होगा ना? जो भी इरेशनल नंबर दिया होगा उसका प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर तुमको लेना है। उसका प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर तुमको लेना है और हमेशा परपेंडिकुलर जो है वो 1 यूनिट रखना है और उसको ज्वाइंट कर देना है। जब तक इरेशनल नंबर नहीं आता, तुम्हारा डिजायर्ड इरेशनल नंबर नहीं आता, तब तक सक्सेसिवली यू हैव टू टेक 1 यूनिट इन द परपेंडिकुलर। तब तक तुमको सक्सेसिवली 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेके ज्वाइंट करना है O पॉइंट के साथ और ऐसे करते करते यू विल गेट योर डिजायर्ड इरेशनल नंबर। होप ये वाला बात समझ में आ गया होगा। आगे एक क्वेश्चन है जो कि तुमको खुद करना है होमवर्क के तौर पे। सो रूट ओवर ऑफ 10 अन्य नंबर लाइन ये तुमको खुद करना है। घर में करके मुझे बिल्कुल ट्राई करना। अगर नहीं आता, अगर यू आर नॉट गेटिंग योर आंसर, यू विल जस्ट पुट द कमेंट सो सर ये नहीं आ रहा है। आई विल अगेन मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वैसे थोड़ा हिंट दे रहा हूं। रूट 10 का नियरेस्ट प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर इज 9, रूट ओवर ऑफ 9 इज 3।
root over of 9 is 3, so nearest perfect square number, previous perfect square number is 9, so root over of 9 is 3, so you will take 3 as the initial base. You will take 3 as the initial base and take 1 unit in the perpendicular, joint it, so you will get root 10 as the hypotenuse. You will get root 10 as the hypotenuse in the नंबर लाइन. ठीक है, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहां पे हाइपोटेनस तुम्हें रूट 10 मिल जाएगा. वहां से कंपास लेके फिर से खींच देना. जब वो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन में, दैट नंबर विल बी फ्रॉम ओरिजिन, दैट लेंथ मेजरमेंट विल बी रूट 10. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा बेटा. तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के और चलते हैं. सो नेक्स्ट इज रियल नंबर इन देयर डेसिमल फॉर्म. रियल नंबर्स इन देयर डेसिमल फॉर्म. तो क्वेश्चन जैसा कि है कि फाइंड द डेसिमल फॉर्म ऑफ 10/3. तो इसको कैसे करना है बेटा, देखो 10/3 का डेसिमल फॉर्म मतलब, डेसिमल मतलब पॉइंट वाला है ना, पॉइंट वाला जो है. तुम 2.5 पढ़े होगे, 0.1 पढ़े होगे, 0.01 भी जाने होगे. तो ये जो पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल. हमेशा याद रखना, डेसिमल के राइट साइड में कभी भी नंबर को हम इनिशियल मतलब डिजिट, जो भी डिजिट है इनिशियल डिजिट को हम पूरा डिजिट के नाम लेके ही पढ़ते हैं. मतलब 0.15. यहाँ पे मैं ये जो लिख रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती करके इसको बोल देते हैं, दैट जनरली मेक द मिस्टेक बाय टेलिंग 0.15 व्हिच इज रॉन्ग. इनिशियल जो भी राइट के डेसिमल के राइट साइड में है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो भी डिजिट है, उसको वो डिजिट को individually you have to say, like in the right hand side of this number, decimal number, so 1 is there, 5 is there, you have to individually say 1 and 5, like the number is 0.15 not 0.15, right? You have to take care of that. So let's see, find the decimal expansion of 10/3, 7/8 and 1/7. So I'll just divide 10 with 3. So 10 is greater than 3, so I can divide here. 3 is a 9. So 10 minus 9 will be 1. Again I will put the this 1 is remainder is less than the divisor, so I'll just put a decimal. So I'll just put a decimal here. So I'll just put a decimal here. If I'll just put a decimal here, a 0 will come here. So 3 is a 9 again. 10 minus 9 is 1. 0. 3 is a 9 again. So 10 minus 9 1 again. 0. 3 is a 9. 10 minus 9 is 1. तो ऐसे अगर करते जाएंगे कभी भी ये खत्म नहीं होगा. हमेशा ये क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा. It will continuously repeat itself. It will continuously repeat itself till the infinity. So I can say 10/3 is equal to 3.3333 and so on. So in mathematics, to avoid such writing such numbers repetitively, we just put a bar sign over that. We just put a bar sign over that number. मतलब जहां पर रिपीट हो रहा है ना, अगर रिपीट हो रहा है उसी नंबर पर हम बार साइन प्रोवाइड कर लेते हैं. मतलब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो आई विल पुट ए बार साइन ओवर हियर 3.3 बार. It means 3 is continuously there after the decimal towards the infinitive ये continuously है. ठीक है, towards the infinitive ये continuously है. बस हम मैथमेटिकली इसको बार में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इतना कौन लिखेगा भाई, इतना नंबर कौन लिखेगा, तो उसके जगह में हम जस्ट पुट कर देते हैं बार. ठीक है, तो और एक नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 7/8. इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे जो डिविडेंड इज लेस देन द डिवाइजर, so I'll just put 0 here. 8 zeros are 0. 7 minus 0 7. Then I will put the decimal here and here it comes 0. So 8 8s are 64. 70 minus 64 is 6. Then again 0 will come. 8 7s are 56. 60 minus 56 is equal to 4. Again 0 will come. So 8 5s are 40. तो see here remainder is coming 0 बेटा, here remainder is coming 0 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है 10/3 के केस में, जबकि 7/8 के केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है. तुम अगर 1/7 को फिर से ट्राई करोगे ना, if you evaluate the value of 1/7 of in decimal form, you will see
In that case also 0 is never coming as remainder. It will repetitive in nature, the quotient will be repetitive in nature, but 0 will never come in the remainder form. So जब रिमाइंडर जीरो आता है, whenever the remainder comes as zero, that decimal is called as terminating decimal. That decimal is called as terminating decimal. ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, if the remainder is not coming zero, then that decimal is called as non-terminating decimal. That decimal is called as non-terminating decimal. ठीक है, तो हर एक डेसिमल को, ईच डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म, either it is either the decimal will be terminating or the decimal will be non terminating. Terminating का मतलब remainder will come zero after certain steps, the remainder will come zero, but in non terminating the remainder will never come zero. ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आया. हर एक डेसिमल, ईच डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड, each decimal is either terminating decimal or non-terminating decimal. Each decimal is either terminating decimal or non-terminating decimal. तो देखो यहां पे मैंने एक लिखा है कि decimal number, if the decimal number, if the remainder is coming zero, then it is terminal. If the remainder is not zero, if the remainder is, sorry it's a mistake, यहां पे odd हो गया था, that is not zero. If the remainder is not zero, then that is non-terminating. अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो सेक्शन है बेटा. रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग मतलब रिपीटेटिव. रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिंग. ठीक है, रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिंग. ठीक है, तो अगर रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, देन दैट विल बी रिक्वायरिंग. अगर रिपीट नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसका पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, देन दैट इज नॉन रिक्वायरिंग. हमेशा याद रखना बेटा, यहां पे एक बात मैं बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं गौर से सुनो, गौर से सुनो. डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है, डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है, द डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग, दैट मींस द रिमाइंडर इज कमिंग जीरो, देन दिस विल बी ए रेशनल नंबर. दिस विल बी ए रेशनल नंबर. ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, देन दैट विल बी ए रेशनल नंबर. If the decimal number is non-terminating, if the decimal number is non-terminating, again it's non-terminating and recurring. अगर वो डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेट, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो केसेस है, इट कैन बी रिकरिंग, इट कैन बी नॉन रिकरिंग. अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिकरिंग हो रहा है बेटा, if it is non terminating and recurring, then this will be also a rational number. अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिकरिंग हो रहा है, दिस विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर. ठीक है, इट विल ऑल्सो बी ए रेशनल नंबर. तो फिर तुम पूछोगे सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, देन इट विल बी अ इरेशनल नंबर. याद है मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इरेशनल नंबर का दो तरीका होता है, जैसे कि √2, √3, √5, जो कि अनडिटरमाइंड है क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है. उसके अलावा जो भी नॉन रिकरिंग पार्ट है, जैसे कि 0.1, 0.1, 01, 001, 0001, 2, 3, 0, 5, ऐसे कोई भी रिपीटेटिव ऐसे आगे आगे ये चलता जाता है, ये चलता जाता है, और ये कोई भी रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, देन दैट विल आल्सो बी एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हमको क्या समझ में आया? एक तो डेसिमल, अगर डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रेशनल नंबर होगा. अगर एक डेसिमल नंबर है, इफ वन डेसिमल नंबर इज गिवन एंड इट इज टर्मिनेटिंग, देन डेफिनेटली दैट विल बी ए रेशनल नंबर. ठीक, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग हो गया, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग हो गया, रिक्वायरिंग का मतलब रिपीटेटिंग हो गया, so that will also be a rational number, so that will also be a rational number. लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिक्वायरिंग या फिर नॉन रिपीटेटिंग हुआ, देखो रिक्वायरिंग का मतलब रिपीटेटिंग है, मतलब फॉलो पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो करेगा. तो अगर नॉन रिक्वायरिंग हो गया, अगर नॉन रिक्वायरिंग हो गया, then that will be a irrational number, that will be a irrational number. ठीक है, समझ में आया इतने बात?
समझ में आया इतना बात? तो यहां से आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होप आज जो तुमको मैंने सिखाने की कोशिश की, जैसे कि नंबर लाइन में कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे तुम खुद से इंटरनेट से सर्च करो और डायरेक्टली कोई भी इरेशनल नंबर को सर्च करके उसको तुम नंबर लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर तुमको स्पाइरल रूट चाहिए बेटा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बता देना कि सर स्पाइरल रूट को कैसे करते हैं, उसको थोड़ा समझा दीजिए। तो आई विल टेक ए एक्स्ट्रा क्लास, अनदर सेपरेट क्लास फॉर इट। तो उसके लिए अलग से सेपरेट क्लास लेके मैं उसको स्पाइरल रूट कैसे बनाते हैं पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां तक अगर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। बिल्कुल दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ई ट्यूशन इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन बाय द एक्सपर्टीज। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि जो सारे बच्चे एजुकेशन नहीं उनको मिल पा रहा है ड्यू टू सम कंडीशन, वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टुवर्ड्स देम। ठीक है, उनके लिए हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे उन तक पहुंचे, हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है। सो यू कैन इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन ऑन द प्ले स्टोर ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू टेक केयर योर फैमिली, बी ए पार्ट ऑफ ई ट्यूशन। सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।